Hello everyone, welcome back to the session. In the morning, because of certain network error, I had to stop the video in between. Okay, but no worries. With in this video, I'll complete the remaining part. Okay, and then you can go with your challenge. Many of you must have challenge already, but those who have not challenged yet, you can see this video and you can do the challenge. You can challenge the questions by looking at this video. Okay. So let me just come back to the part where we left. Okay, I hope this is visible to everyone. uh, there was one question. I'll just start with the first one. See, I told you that this we don't have to challenge. Okay, there is no need to challenge this question, that is 001. फर्स्ट क्वेश्चन चैलेंज नहीं करना है, फिफ्थ क्वेश्चन भी चैलेंज नहीं करना है. ओके, डू नॉट चैलेंज क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल, दैट इज दिस वन, मेमोरी. The question that we have to challenge is 50. If you see over here, yes, 47 question. See, many of you are saying that definition list is not a part of it, but definition list and descriptive list are same. Okay, I can write it as definition or descriptive list. So basically they both are same, there's nothing wrong with that. So I personally don't feel that there is need to challenge this question. Okay, according to me, there is no need to challenge this particular question, that is question number 47. Next, if we see this one, 49, there is also no need to challenge this question because the answers are correct, A and B. I've already explained this in the previous video, so there is no need again to challenge this one. Yes, question number 50. Question number 50 को आपको challenge करना है. ठीक है, challenge करना है question number 50 को because there are two correct answers, option number 1 and option number 3. ठीक है, so challenge करना है question number 50 को everyone. उसके बाद next question that was there, you were having problem was question number 58. इसको भी challenge नहीं करना है, ठीक है, because 58 also is correct. Then there was this question. This one, yes, this one you have to challenge 81. 50 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है वो है 81, दैट इज दिस वन. यहाँ पे क्वेश्चन की डेफिनेशन है और ये कपलिंग की डेफिनेशन है, तो इसका है कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. तो 50 चैलेंज करना है और 81 चैलेंज करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है, इसको भी चैलेंज नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 82, नो नीड टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, देन इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी इज 94 and 95. Many of you are having problem with 94, 95. ठीक है, so we'll see first one. See, यहाँ पे सिंपल सी चीज तो आपसे बोल रहे हैं. क्या गिवन है आपको यहाँ पे? If you see over here, an organization is granted the block 130.56.0.0/16. ठीक है, so if you see over here, यहाँ पे what they have clearly writing is, this is your thing 56.0.0/16. What does the 16 means? 16 means that these many bits are reserved for your network ID part. Yes or no? So this means that these first two 16 bits, these 16 bits are reserved for your network ID part, right? And these 2 bits, that is these 16 bits, these are reserved for your host ID part, correct? Now
Next, they are saying that the administrator wants to create 1024 subnets. Now 1024 means what? 2 raised to power 10, है ना? 1024 is equal to 2 raised to power 10. This means that 10 bits are reserved for your subnets. 10 bits are reserved for subnet. Okay. So now what we will do, now this simply means that out of these 16 host bits, I have told this earlier also that subnet bits are borrowed from the host, है ना? जो subnet bits होती हैं वो आप कहाँ से borrow करते हो? Subnet bits are borrowed from host bits. Correct. Now if you see over here, how many bits do you have for host? Host bits are 16 host bits. ठीक है. So host minus subnet will give you remaining host. मतलब 16 बिट्स आपकी टोटल बची यहाँ पे. करेक्ट. 16 बिट्स आर रिमेनिंग, जिसमें से 10 बिट्स फॉर सबनेट यू हैव रिमूव्ड. सो रिमेनिंग बिट्स कितनी हुई? 6 बिट्स. सो दिस मीन्स दैट 10 bits out of these 16 bits are reserved for subnets and the remaining 6 bits are reserved for host. तो अगर मुझे लिखना होगा, how will I write? I will write as 136.56 dot. Now subnet bits हो गए. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these 10 bits are reserved for your subnets, and then next will be 1 2 3 4 5 6. These 6 bits are for your host. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लास्ट सबनेट? लास्ट सबनेट का मतलब है दैट, देखो अगर ये आपका सबनेट है, दिस इज योर सबनेट 1. लास्ट सबनेट विल बी all the subnet bits, that is all 10 bits are 1. ये आपका last subnet होगा. Understood? This will be your last subnet. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक में, to determine the first usable IP addresses. अब ये मैंने क्यों लिखा है? Because I hope you know that कि whenever we deal with host parts, whenever we deal with host, उसमें से host -2 करते हैं. सो जो रिमेनिंग आती है वो आती है हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेस. यस, दैट इज वी रिमूव द फर्स्ट एड्रेस एंड वी रिमूव द लास्ट एड्रेस. ठीक है. तो हमारे पास क्या आता है? यूजेबल आईपी एड्रेस. बट अब क्वेश्चन में दे हैव क्लियरली आस्क्ड, दे आर आस्किंग फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस. दे आर नॉट आस्किंग फर्स्ट एंड लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस या फर्स्ट एंड लास्ट जो आपकी, मतलब ये क्या हम कहीं मेंशन नहीं किया इन्होंने कि हमें यूजेबल आईपी एड्रेस चाहिए. सिंपली सेइंग दैट यू हैव टू गिव फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट. तो कैसे होगा? तो अब सबनेट्स में से कैसे हम करते हैं? 136.56 है हमारा, है ना? सो आई जस्ट डू इट ओवर हेयर. यहाँ पे आई डू इट. सो लास्ट है, सो 136.56 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपके 10 हो गई सबनेट बिट्स. ये आपका लास्ट सबनेट हो रहा है. एंड पहला एड्रेस होगा जिसमें होस्ट बिट्स क्या होंगी? सारी 0 1 2 3 4 5 6. और लास्ट एड्रेस क्या होगा? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका first address of last subnet. Last subnet कैसे हो रहा है? Because all subnet bits are 1. And then next will be 130.56 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 1, and all host bits will also be 1. ठीक है. ये आपकी होस्ट बिट्स थी ऑल 0 और ये आपकी होस्ट बिट्स हैं ऑल 1. तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया लास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द डेसिमल वर्जन ऑफ दीज टू? विल राइट सिंपली. ये आपका हो गया 130.56
ऑल वंस है तो ये 255 डॉट ये क्या होगा, ये हो गया 192 और ये हो गया 130.56.255.255। सो करेक्ट आंसर क्या बना आपका 130.56.255, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही आपका करेक्ट आंसर भी है। यस, जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 एंड दिस आंसर इज ऑल्सो मार्क्ड इन योर आंसर की इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट आई चेक क्विकली, क्या क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 94। सो 94 676 एंड व्हाट इज दिस 676, ऑप्शन नंबर 4। सो राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका हो गया, ये आपको चैलेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 94 इज करेक्ट, यू डोंट हैव टू चैलेंज दिस। नाउ वील सी क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95? क्वेश्चन नंबर 95 इज सेइंग फाइंड द सबनेट मास्क। सेम चीज है बट concept पूरा सेम है। The only thing they are saying is you have to find the subnet mask. What is subnet mask? Subnet mask is basically it is used for identifying the network portion. ठीक है, network portion of the address. तो क्या हो जाएगा सबनेट मास्क आपका, सबनेट बिट्स ऑल 1। ठीक है, सबनेट बिट्स ऑल 1, सो 136.56.1234567.8.11 और होस्ट बिट्स आपकी सारी 0। दिस इज योर सबनेट मास्क। क्या सबनेट मास्क है आपका, ये जो आपकी सबनेट बिट्स हैं, सबनेट बिट्स विल बी ऑल 1 बिकॉज सबनेट बिट्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ नेटवर्क आईडी ओनली एंड द होस्ट बिट्स आर ऑल 0। सो व्हाट इट इज 130.56 डॉट, ये 136 क्यों लिख दिया मैंने, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, दिस इज 130 ओनली। ठीक है, 130.56 डॉट ये क्या हो गया आपका 255.192, ये आपका सबनेट मास्क हुआ। एंड दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द गिवन ऑप्शंस, सो इट इज रॉन्ग। So that is why you have to challenge this particular question. ठीक है, so questions के लिए challenge करना है आपको 50 challenge करना है, correct? कपलिंग वाला क्वेश्चन चैलेंज करना है आपको, कपलिंग वाला का नंबर क्या है, 94 चैलेंज करना है, वो सॉरी 95 नॉट 94, 95। What is the number of coupling wala coupling question? एक मिनट, just let me check. Coupling wala question is 95, 81 आपको चैलेंज करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो फॉर नाउ वी हैव टू चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, जिसमें जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन ट्यूरिंग मशीन वाला। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पे, अ ट्यूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज एल, ये आपकी लैंग्वेज है जो आपको मेंशन की हुई है, दिस वन। राइट, दिस इज द लैंग्वेज जो आपको मेंशन किया हुआ है इन्होंने। L is equal to a raised to power n, b raised to power m, c raised to power n, d raised to power m. मतलब what they are saying is they are trying to say that a is equal to c and occurrences of b is equal to d. ठीक है, n is greater than equal to 1, m is greater than equal to 1.
ठीक है, सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस, देन वी विल चेक विद दिस टेबल. क्लियर. रिजल्टिंग मॉडल इज एम. आपके जो एम होते हैं यहाँ पे 7 टपल्स होते हैं. ठीक है, ट्यूरिंग मशीन में वी हैव 7 टपल्स, जिसमें आपका ये हो गया नंबर ऑफ स्टेट्स, ये हो गया आपका इनपुट अल्फाबेट्स, ये हो गया आपके टेप अल्फाबेट्स. ठीक है, x1 x2 y1 y2 आपके टेप अल्फाबेट्स हैं. फिर ट्रांजिशन फंक्शन Q नॉट आपकी इनिशियल स्टेट, B आपका ब्लैंक हो गया और QF आपकी फाइनल स्टेट. Part of transition function is given in the transition table. You need to write the following questions based on design of Turing machine for the given language. Note that while designing the Turing machine, x1 and x2 are used to work with A and C, and y1 and y2 are used to handle B and D of the given string. ठीक है, कुछ नहीं है. सबसे पहले what we will do, we will design a Turing machine सबसे पहले. So उसके लिए let's move to this part. ठीक है, now try to understand this question very nicely. क्या बोल रहे हैं वो आपसे? वो आपसे सिंपली बोल रहे हैं that a string should be a raised to power n, b raised to power m, c raised to power m, d raised to power n such that n is n comma n greater than equal to 1. ठीक है, मतलब वी हैव टू चेक ए विद सी एंड वी हैव टू चेक बी विद डी. मतलब जो भी स्ट्रिंग यू विल बी राइट, whatever string you will be writing, you will be comparing A and C and you will be comparing B and D. Simple. Number of occurrences of A should be equal to number of occurrences of C, and number of occurrences of B should be equal to number of occurrences of D. ठीक है, so let's take a string. Let's take a simple string. I'll write the string over here. Let's say that I am taking 3 occurrences of A. ठीक है, A, 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 2 occurrences of B, B, B. So this means 3 occurrences of C and 2 occurrences of D. And lastly we will have a blank. ठीक है, this is, let's suppose that this is the input string that we have taken care of. Now they are saying that A will be replaced by x1, B will be replaced by y1, C will be replaced by x2 and D will be replaced by y2. ठीक है, so let's start with the question. Let's start with the table diagram. We will have, सबसे पहले we will have Q naught as your initial state. ठीक है, now Q naught will encounter this A. ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें what you have to understand is right and left का मतलब क्या है. Right and left simply means that कि we are moving in the right direction of the string or we are moving in the left direction of the string. ठीक है, let's start now. Now first alphabet that was encountered or first input that was encountered was A. ठीक है, so क्या बोले हमने कि when A will be encountered we will move to new state that is Q1. correct. And transition क्या होगा, A को we will convert into x1 and we will move in the right direction. yes or not. A को हम क्या करा, A को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, A को we have replaced by x1. A is replaced by x1 and we have moved in the right direction of the string. ठीक है, now this A, ये जो A है आपका, इसको आपको किससे चेक करना है, this A has to be checked with C. Number of occurrences of A should be equal to number of occurrences of C. तो obviously अगर आपके पास 3 A's हैं so you should have 3C with you. करेक्ट. सो जब आप एक A को रिप्लेस कर रहे हो तो देन यू विल चेक द C, नेक्स्ट C, राइट. सो दिस मीन्स दैट I have to skip all the alphabets in between before I encounter first C. उसका क्या मतलब है, how I'll do this, it simply means that what I will do, I will make a for loop, sorry I'll make a self loop. उस self loop में what I'll say is that कि अगर A encounter हो रहा है, ठीक है, by reading, जो read हम जो input ले रहे हैं, अगर A है तो I will let it remain A and I will move towards the right. तो अगर A encounter हुआ
तो वो ए रहा, आप राइट में मूव कर गए. फिर ए एनकाउंटर हुआ, इट विल रिमेन एज ए, आप राइट में मूव कर गए. नाउ यू हैव एनकाउंटर्ड बी, अभी यू विल नॉट वर्क फॉर बी, सो अगेन इट विल रिमेन. बी एनकाउंटर हुआ, उसको बी ही रहने दो. नाउ वील मूव टू राइट. सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, वॉट इट इज ट्राइंग टू से, वॉट इज दिस स्टेटमेंट इज दिस. अगर मैं ये बोल रही हूँ, वॉट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द अल्फाबेट आई एम रीडिंग. ठीक है, दिस इज वॉट आई एम रीडिंग, दिस इज वॉट आई विल कन्वर्ट, आई विल कन्वर्ट माई इनपुट अल्फाबेट इनटू. ठीक है, मतलब अगर ए है तो ए को रिप्लेस कर दो x1 से. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मतलब कि मूव इन दिस डायरेक्शन. दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ठीक है, अब ये आपका आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया. नाउ बी एनकाउंटर हुआ, सो वी विल लेट इट रिमेन एज इट इज एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट. फिर बी आया, उसको ऐसे रहने दिया. नाउ वील मूव टुवर्ड्स द राइट. अब आया सी. Now what I'll do, now I will move to next state, that is Q2. And what will be my transition? The transition will be, when I will encounter C, I will replace it by X2 and I will move towards the left. क्यों? Because I have to now C की कोई A तो नहीं बच रहा है. Why I am moving towards left? I will be moving back towards the A because A और C का comparison करना है अभी. ठीक है, इसलिए I will go back again to A. तो for now अभी मैं सिर्फ A और C के बीच में ही I'll just move between A and C only. ठीक है, so इसीलिए अब आपका ये आ जाएगा. So now this C will be replaced by X2. Now I'll move towards left. अब यहाँ पे I am at Q2. Now at Q2 what will happen? Now if you see, I'll encounter B. जैसे ही मैं लेफ्ट मूव किया, सबसे पहला इनपुट जो मैंने एनकाउंटर किया वो किया B. So what I'll do, I'll make a loop again, जहाँ पे I'll say कि अगर कोई भी B एनकाउंटर हो रहा है उसको as it is रहने दो and then move towards left. फिर आप यहाँ पे आए, अगेन B को B रहने दिया, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. फिर आपका आया A. सो अगेन अब हमें नहीं पता कि अगर यहाँ पे आप बोलो कि इस A को कन्वर्टेड इनटू X1, सो ये वाला A रह जाएगा. यस, सो व्हाट आई डू, अगेन आई विल लेट इट रिमेन एज इट इज. A को A रहने दिया, मूव इट टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, अब जैसे ही मैंने X1 एनकाउंटर किया, I will draw another state, I'll move towards another state, that is Q3. ठीक है, and the transition will be x1 को x1 ही रहने दो and right move करो. x1 को x1 ही रहने दो. ठीक है, let x1 remain x1 and move towards right. इसका मतलब क्या है, once I have reached x1, this simply means that कि अब कोई a नहीं है. So now what I'll do, now I will use this transition, that is अगर A एनकाउंटर हो रहा है उसको x1 में कन्वर्ट करो एंड मूव टूवर्ड्स द राइट. आई विल गो बैक टू Q1. क्यों? क्योंकि Q1 पे हमने जब Q0 पे था तो हमने यही ट्रांजैक्शन यूज की थी. सो नाउ अब इस A पे आया, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, Q0 पे थे हम, Q0 पे हमने A को x1 राइट किया और हम राइट में आ गए. फिर Q1 पे हमने सेल्फ लूप लगाया कि अगर A, क्योंकि नाउ वी हैव टू चेक बिटवीन A एंड C. सो A था तो उसको A रहने दिया, मूव टू राइट. B था, B रहने दिया, मूव टू राइट. C है, नाउ C को वी विल कन्वर्ट टू X2 एंड वी विल मूव टूवर्ड्स L बिकॉज वी हैव टू चेक बिटवीन A एंड C. अब C से जब आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, सो नाउ यू विल एनकाउंटर B, लेट इट रिमेन एज इट इज एंड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. B, फिर वही आया, कोई बात नहीं, फिर A आया. अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि A को हमने x1 कन्वर्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज अगर मैं इस A को x1 कन्वर्ट कर दूं देन व्हाट अबाउट दिस A, है ना, ये A रह जाएगा. इसलिए आई हैव टू मूव टूवर्ड्स दी x1 पार्ट जहां पे मुझे x1 रीड हो रहा है. where I will reach this x1, this simply means कि इसके इधर कोई A नहीं बचा है. Towards the left of it there is no A left, correct? इसीलिए now I have read, यहाँ तक मैंने रीड की अपनी एक्सप्रेशन को x1 तक, एंड देन उसके बाद फिर जैसे ही मेरे को A रीड हुआ I will use the same transition, A को x1 राइट करके I will move towards the right.
अब Q1 पे ये आपका x1 हो गया, दिस a हैज बीन कन्वर्टेड अगेन टू x1। अब यहाँ पे आओ, a को a रहने दिया, राइट मूव करा, b को b रहने दिया, राइट मूव करा, अब यहाँ पे x2 भी रीड हो रहा है। सो द नेक्स्ट आई विल यूज इज x2 को x2 रहने दिया एंड राइट में मूव किया, बिकॉज आई हैव टू रीच दिस c। तो अब c पे यहाँ पे c आ गया, इस c को रीड किया, आई विल कन्वर्ट दिस c टू x2 एंड आई मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ पे भी सेम x2 आएगा यहाँ पे, सो आई विल राइट इट एज x2 को x2 रहने दिया एंड आई मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। सेम x, अब जब आपका x1 आएगा तो आपने x1 को x1 रहने दिया, ठीक है, आपने a वाला x1 एनकाउंटर किया, x1 को x1 रहने दिया, यू मूव टूवर्ड्स राइट। अब a आया, सो नाउ यू विल कन्वर्ट दिस a टू x1, या आपने a को x1 कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंड मूव टूवर्ड्स राइट। b को रहने दिया एज इट इज, b को रहने एज इट इज। अब ये वाला x2 रहा, नाउ दिस c विल कन्वर्ट टू x2। तो ये आपका बेसिकली एक लूप हो गया फॉर a टू c। ये वाला जो Q0, Q1, Q2, Q3, ये जो 4 स्टेट्स हैं, दे आर फॉर कंपेयरिंग a एंड c। नाउ अब यहाँ पे हमारा आया x1 रिमेन एज x1, ठीक है। नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी a। जब हमने ये वाला एनकाउंटर कर लिया, दिस 3 A's वी हैव एनकाउंटर्ड, नाउ वी सॉ दैट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी a, नाउ वी आर हैविंग अ b। This simply means that A are finished. So now what I will do, now I'll move to another state, that is Q4, and the transition that I will use is when reading B, convert into Y1 and move to right। क्या कर रहे हो, जैसे B को आपने रीड किया, कन्वर्ट करो B को Y1 में and move towards the right। अब again right में you will, first thing that you will encounter is another b, so you will have a loop, that is b को b ही रहने दिया and we will move towards right। now we will encounter x2, so another will be x2 को x2 रहने दिया and we will move towards right, because now we have to compare b with d। so अब हमारे पास आ गया d, ठीक है। now what we will do, now we will move to another state, that is Q5, and that state will have when you will encounter D, convert it into Y2 and move towards the left। वही जो सेम हमने यहाँ पे किया। so अब जो ये D है आपका, this D will be converted to Y2, ठीक है। now we will have a loop on this Q5। what loop will be, अब Y2 आ गया, next अब हमारा X2 आया, so I'll put a loop over here। क्या loop हो गया कि X2 अगर है तो उसको X2 रहने दो and move towards L, ठीक है। B अगर है, ठीक है, B अगर है तो उसको B रहने दो, B है तो let it remain it as B and move towards L, ठीक है। now I am encountering Y1, ठीक है। so the next state I'll move to is, next state will be as soon as I encounter Y1, I will let it remain as Y1 and I'll move towards right। ये आपकी हो गई स्टेट Q6। तो Y1 को Y1 रहने दिया, now you move towards right। so अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला B। so now you will go to which state, now you will go to Q4 from Q6, and the transition will be if you encounter B, convert it into Y1 and move towards right। so अब आपका ये जो है ये Y1 हो गया, नाउ यू विल मूव टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ पे आपको X2 मिल रहा है, X2 को X2 रहने दिया, B मिल रहा है, B रहने दिया, Y2 मिल रहा है। सो अगेन यू विल ऐड वन ट्रांजिशन, दैट इज Y2 मिल रहा है तो Y2 विल रिमेन Y2 एंड यू विल मूव टुवर्ड्स राइट। अगेन D मिला, D को आपने Y2 कन्वर्ट किया, ये D आपका Y2 में कन्वर्ट हो गया एंड यू विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट में अगेन आपको Y2 मिला, सो यू विल ऐड दिस फंक्शन, दैट इज Y2 अगर मिल रहा है so let it remain as Y2 and move towards left। अब सपोज यहाँ पे आपका Y1 से Y1 आपका राइट आ गया, ठीक है। now you have reached this point, that is you have received Y1 and you are let it remain as Y1 only। now there is no B, so now you will move towards, now you will have X2। तो next state जो आपकी बनी that will be Q7, and that Q7 का ट्रांजिशन होगा
if you are encountering x2, let it remain as x2 and move towards right, because अब b खत्म हो गया आपके पास. You are moving to a new state from q6 when you are encountering b. अब जब b खत्म हो जाएंगे, so you will need something else to move to a new state, so that will be your this transition x2. x2 को x2 रहने दिया, so with this self loop you will have, that is x2 को x2 रहने दिया, move towards right. Then y2 को y2 रहने दिया, move towards right. And the last will be your qf, that will be your final state with this transition, that is अगर b आ रहा है तो b को b रहने दो and move towards right. This will be your final state. So ये बेसिक वर्किंग है आपकी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे आई राइट इट अगेन यहाँ पे बिकॉज थोड़ा मुझे रफ करना पड़ा. a को हमने रिप्लेस किया है x1 से, b को हमने रिप्लेस किया है y1 से, c को हमने रिप्लेस किया है x2 से एंड d को हमने रिप्लेस किया है y2 से, बिकॉज दिस वॉज मेंशन इन द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल मैच द टेबल. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, नाउ वी विल मैच द टेबल. अब आप टेबल देखो, from q naught, if you see this, from q naught we are having only one transition. From q naught we are only having one transition, a x1 r. अब यहाँ देखो q1 x1 r, मतलब ये आपकी रीडिंग अल्फाबेट्स हैं a b c d. So from q naught when you are reading a, you are going to q1, right? You are converting a to x1 and you are moving r. तो ये आपका करेक्ट हो गया. ठीक है, दिस इज करेक्ट. फ्रॉम दिस, अब यहाँ पे अगर आप देखो, सॉरी अगर आप यहाँ देखो, सॉरी ओवर हेयर m2, q1 से देर इज नो अदर इनपुट और नो अदर आउटपुट. q1 से कोई और ट्रांजिशन फंक्शन इज नॉट गोइंग आउट. सो दिस m2 इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर, आई राइट इट ओवर हेयर, दिस m2 इज योर एरर एंट्री. m2 आपकी एरर एंट्री है. ठीक है, सो m2 जो क्वेश्चन है आपका, जो भी क्वेश्चन है m2 का, वो एरर एंट्री का है. ठीक है, करेक्ट. नेक्स्ट वी मूव टू q1. लेट्स मूव टू स्टेट q1. q1 आप देखो, q1 पे जब आप रीड कर रहे हो, q1 पे आपने रीड किया अल्फाबेट a. ठीक है, q1 पे आपने रीड किया अल्फाबेट a, यू आर ऑन q1, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो ये आपका वही है q1 a r, करेक्ट. फिर आपने q1 पे जो b रीड किया, अगेन यू आर ऑन द सेम स्टेट q1 b r, करेक्ट. नाउ दिस m1, जब आप c रीड कर रहे हो, ठीक है, जब आप c स्टेट पे हो, सो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर मूविंग टू q2, यू आर कन्वर्टेड इनटू x2 एंड यू आर राइटिंग l, मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो अब जो आपका m1 है, m1 विल बी, you are moving towards q2, you are converting it into x2 and you are moving in the left direction. ये हो गया. बट अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, q1 x2r, now again we will check for q1 x2r, q1 x2r, ये भी सही है आपका. ठीक है, you are on q1 only, you are converting x2 to x2 only and you are in moving in right direction. q1 आपका करेक्ट हो गया. लेट्स गो टू q2. q2 में है q2al, मतलब when you are reading a on and you are on q2, you are on q2 only and you are letting it remain a, ये वाली. ठीक है, b पे bl, b पे bl, ये भी ठीक है. q2 x1r, मतलब they are saying that आप q2 पे हो and you are reading x1, you are on q2 only. ये जो आपकी ट्रांजिशन फंक्शन है, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे they should have written, what they should have written, they should have written it as q3. ये q2 ना होके q3 होना चाहिए था. So this is what is wrong in this particular table. ये चीज़ गलत है. बाकी हम देखें x2 की बात, q2 x2l, so q2 x2l is correct. Next we have q3. अब m3 है, ठीक है. q3 पे अब लेट्स से a ट्रांजैक्शन पे क्या हो रहा है, a ट्रांजैक्शन पे वी आर मूविंग बैक टू q1 विद x1 एंड r. सो अब जो आपका m3 बना, योर m3, ठीक है, m3 आपका क्या हो जाएगा, m3 विल बी, यू आर गोइंग बैक टू q1, यू आर कन्वर्टिंग a टू x1 एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स r.
सो M3 हो गया. लेट्स चेक फॉर Y1R. Y1R पे यू आर मूविंग टू Q4, करेक्ट. लेट्स चेक फॉर X2. X2 पे जो आप रीड कर रहे हो Q3 पे आप X2 रीड ही नहीं कर रहे हो, पहली बात तो, राइट. Q3 पे वी आर नॉट रीडिंग X2. सो ये वाली जो स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप Q3 पे X2 रीड कर रहे हो सो यू विल गो टू Q6, जो आप नहीं जाओगे. सो अनदर रॉन्ग स्टेटमेंट दैट आई फील इज दिस वन. ये भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट वील चेक फॉर Q4. Q4 आपका Q4BR, सो Q4BR, ठीक है. Q5Y2L, सो मतलब Q5, ओके, Y2L, ये भी ठीक है. M5 जब आप X2 रीड कर रहे हो किस पे, Q4 पे. Q4 पे जब आप X2 रीड कर रहे हो सो अगेन यू आर ऑन Q4 ओनली, है ना. सो M5 हो गया Q4X2R. सो व्हाट इज M5? M5 हो गया आपका, M5 इफ यू टॉक अबाउट, M5 हो जाएगा आपका Q4X2 एंड R, ठीक है. एंड देन Y2 अगर आप रीड कर रहे हो तो इट विल बी Y2L, Q5Y2L, नहीं Q4Y2R, एक मिनट, सॉरी वी आर ऑन Q4 राइट नाउ, सॉरी Q4Y2R, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है. Q तो जो गलती है एक तो इस वाली स्टेट में है, Q2 में प्रॉब्लम लग रही है मुझे एंड Q3 में मुझे प्रॉब्लम लग रही है. बट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस M1 M2 M3 M5 के ऑप्शंस करेक्ट हैं. लेट्स चेक Q5 ऑल्सो. Q5BL, सो Q5BL करेक्ट. Q5X2L, Q5X2L करेक्ट. अब हम Y1 जो रीड कर रहे हैं M4 में, राइट, Y1 वी आर रीडिंग ऑन दिस, वी आर मूविंग टू Q6. सो अकॉर्डिंग टू मी M4 क्या होना चाहिए आपका, M4 होना चाहिए Q6 Y1 R. दिस इज व्हाट शुड बी योर M4 अकॉर्डिंग टू मी. बट क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है. सो एक जो चैलेंज वाला क्वेश्चन हो रहा है वो है M4 वाला, ठीक है. इस वाले क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, दैट इज योर M4 वाला जो पार्ट है. बाकी टेबल आपकी गलत है, ये टेबल में 2 एंट्रीज गलत दी हुई हैं. ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो, Q5Y2L, Q5Y2L, ठीक है. Q6 पे अगर हम आए तो Q6X2R, Q6X2R से हम Q7 पे जा रहे हैं. सी Q6X2R से आई एम गोइंग बैक टू 7 और यहाँ पे दे आर एट द सेम स्टेट, जबकि Q6 Q7 QF उन्होंने यूज किया है. सो अगेन आई फील दैट दिस स्टेटमेंट, ये वाली जो ट्रांजिशन है ये भी अब ये भी गलत है. Q7Y2R, नाउ Q7Y2R, अब Y2 पे दे आर मूविंग ऑन दिस Q7. सो अगेन अकॉर्डिंग टू मी ये भी मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है. देन Q7 पे आप हो तो आप Q7 पे ही हो Y2R एंड देन यू आर ऑन QF से BR, तो ये आपका करेक्ट है. सो according to me this entire table is wrong at these 4 steps, ठीक है. बट अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करें सो M1 M2 M3 M5 these all 5 are correct. क्वेश्चंस में जो उन्होंने आंसर यूज किए हैं दे आर करेक्ट. बट M4 का क्वेश्चन दे हैव गिवन रॉन्ग, सो यू कैन चैलेंज M4 and if you want you can challenge the entire question also because the options, the values given in table are wrong, ठीक है. सो आप पूरा क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो M1 M2 M3 M4 M5 बिकॉज सिंस द टेबल इज रॉन्ग तो आई गेस दे विल ड्रॉप द एंटायर क्वेश्चन बिकॉज द गिवन टेबल इज रॉन्ग. सो आई फील दैट दे विल बी ड्रॉपिंग द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है. एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था टू लुक इनटू दिस. सो अगेन M1 में देखो आंसर इन्होंने सेम दिया है बट द टेबल्स, द प्लेस वेयर दीज टेबल्स आर रॉन्ग, तो ये मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ पे मुझे टेबल गलत लग रही है. सो यू कैन चैलेंज ऑल द 4 क्वेश्चंस, ऑल द 5 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M4 M5. M4 तो डेफिनेटली गलत है ही, तो ये आपको चैलेंज करना है. बट रिगार्डिंग दीज 4 ऑल्सो यू कैन चैलेंज इफ यू वांट बिकॉज द टेबल गिवन इज रॉन्ग. टेबल में दे हैव व्हाट दे हैव गिवन इज रॉन्ग. 2 क्वेश्चंस आपके आंसर्स उन्होंने सही यूज किए. M1 का सही आंसर मेंशन किया टेबल में, M2 का सही आंसर मेंशन किया है
बट M4 का आंसर ही गलत है. So according to me, I think they will be dropping this question. But if you want, you can challenge all the 5 questions. ठीक है. फिर एक ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, वन ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन फ्रॉम दिस पैसेज कि अबाउट दिस क्वेश्चन assertion रीजन तो पैसेज में है. आई जस्ट टेल यू वेरी क्लियरली कि जो करेक्ट आंसर वो है जो दिया हुआ है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, हाँ, इस पैसेज में जो क्वेश्चन आपको देखना है वो है assertion रीजन वाला, राइट, ये वाला. Now see, in this part they are giving statement 1. What they have given is, statement 1 is social media platforms are able to control the type of content that will appear on the reader's feed. अब ये चीज़ आपकी यहाँ mention है. अगर आप देखो, if you come over here, यहाँ पे they have clearly mentioned social media monster which decides which article will appear in reader's feed to maximize advertising revenues. ठीक है, अभी आप पूरा statement पढ़ो. Local news publishers, often very small, suffered disproportionately to the extent that many have gone bankrupt in the last few years. Those who have survived have become more content producing vendors. They exist to feed the social media monster, which decides which article will appear in which readers feed to maximize advertising revenues. ठीक है, अब जो आपका रीजन दिया हुआ है फॉर दिस स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी. सो जो इन्होंने रीजन दिया है आपका, क्या रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखो, द रीजन दे हैव गिवन इज दे डू सो बिकॉज दे आर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो ये आपका गलत है. मतलब assertion इज वो, ये जो आपका फर्स्ट है कि इसका है कि ए इज करेक्ट, मतलब assertion इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंड ऑप्शन नंबर 3 ही मार्क्ड है आपका. सो यू डोंट हैव टू चैलेंज दिस क्वेश्चन. ठीक है, जो मुझे लगता है चैलेंज करने वो मैंने आपको बता दिए हैं. सो प्लीज एवरीवन डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड चैलेंज द राइट क्वेश्चंस. ठीक है, एंड वेरी सून वील बी डिस्कसिंग दिस एंटायर पेपर. वेरी सून आई बी अपलोडिंग द सीरीज ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, एंड आई होप कि आपको वो सब क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे. ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरीवन.